going to teach you about robotics, and I'm going to give you the brief of robotics. Means what is the theory part you have to learn if you want to learn about robotics. What are robots? What are the main components of a robot through which they are composed? एंड रोबोटिक्स जानने के लिए मतलब हमें क्या क्या जानना चाहिए। जैसे रोबोटिक्स जानने के लिए हमें जानना चाहिए कि रोबोट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, रोबोट्स किन किन चीज़ों से बना होता है, और कौन कौन से मेन, जैसे हमारे मोबाइल में चिप होता है वैसे ही रोबोट्स में सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स होते हैं जो रोबोट्स को हेल्प करते हैं उसके मूवमेंट में, लोकोमोशन में, ऑटोमेशन में। तो वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स, और कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो हम ऑटोमेटिक मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम जानते हैं एड्रीनो के बारे में। ऑर्डिनो ऑर्डिनो जो है वो एक छोटा सा डिवाइस है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू डेवलप अ रोबोटिक हैंड, देन यू हैव टू means suppose you will make a robotic hand using some thermocol and all, then you will set a सर्किट विच इज़ कॉल्ड एड्रीनो इनसाइड दैट, एंड उसके अंदर एक चिप होगी जिसमें आप कोडिंग करोगे, एंड देन व्हेन यू विल प्रेस द स्टार्ट बटन देन इट विल मूव, एंड अकॉर्डिंग टू योर कोड, अगर आपने कोडिंग में कर रखी है कि इट विल मूव अप टू डाउन, इट विल मूव क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आप जैसे मूव कराना चाहते हो, यू कैन यूजिंग robotics and using different robotics devices. I don't know what happened to my, see my system is very much slow. I have a PPT for robotics that I'm trying to open. I have made impressive PPT through which I will guide you what are the main component of a robotics, and in this PPT I have tried to give many pictures also about the different kind of devices, like if you will develop a robot, then what will means hand, like we have our motherboard in our computer, we know the different part of motherboard में we know the circuitry, we know कि उसमें RAM slot होता है, we know we have the slotted fan, we know we have different types of devices in our motherboard, which we have different slots also through which we connect our devices, our computer devices through our CPU. So robotics भी उसी तरह से है, means it is combination of electrical components along with the coding. So what is robotics? Basics of robotics. First of all you need to learn about some basics, and जब हम इसका theory समझ लेते हैं तो we can order a robotics kit, and robotics kit के help से we can assemble our robotics kit, और फिर हम उसको चला सकते हैं. So now what are the basics of robotics? First one is the understand what is a robot. So what is a robot? Machine that sense, think and act. मशीन जो सेंस कर सकता है, मीन्स यू हैव योर रिमोट कंट्रोल थ्रू विच यू आर ऑपरेटिंग योर television. Whenever you are putting any button from your remote, then you are getting a signal of switching on and off of your TV. Means it has a sensor which is giving a sensing signal to the TV through which it is operating. Now think and act means we know that we are in a generation of machine learning, that whenever we used to give instructions to machine, back to back instruction, then according to our instruction our computers are getting smarter and smarter day by day, and it can think means it can analyze our data, that the first data will be this, then the next data will be this, and then it can act accordingly. Now the next thing is learn about the component of robots. So what are the things we need if we want our robotics, our if we have assemble a robot, हमने अगर एक रोबोट बनाया है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे हम उसे मूव करा सकते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो कंट्रोलर। सो मैंने आपको आर्डिनो के बारे में बताया, दिस इज अ आर्डिनो इज इटसेल्फ अ माइक्रो कंट्रोलर मीन्स छोटा कंट्रोलर विच कैन कंट्रोल योर रोबोट्स. So Arduino is there, Raspberry Pi is there. Now we have the example of sensors. Sensors are also different type. We have ultrasonic sensors, we have lidar sensors, we have different cameras also. Let me see about my
sound setting, because sometimes whenever I'm teaching my sounds are not working properly, but my laptop is slow. So sensors, what are the things we need? We need microcontroller. Microcontroller के example हो जाएगा Arduino, Raspberry. We have the sensors जिसमें sensors are of different type. Ultrasonic sensors भी हो सकते हैं, lidar sensors भी हो सकते हैं, cameras भी हो सकते हैं. We have motors and actuators जिसमें servo motors हो सकते हैं, steppers हो सकते हैं, DC motors हो सकते हैं. Power sources जिसके लिए हमें power बैटरी या सोलर हम यूज कर सकते हैं. जिसके लिए बैटरी. Now, what is a robotics? It is a branch of engineering and science that deals with design, construction, operation, and use of robot. You will design a robot, then you will do coding, then according to your instruction, it will move. That is robotics. Robots can be human control or autonomous. Human control means आपका robot किसी laptop से या किसी you have a remote through which you are giving instruction to a robot, and according to your instruction it is performing the operation. Robotics blends engineering and technology to create intelligent machines. Of course it is engineering because ये engineering ही है कि we are making a machine. हम एक टीम का या फिर हम एक जैसे बच्चों को TLM बनवाते हैं तो हम एक थर्मोकोल की का मॉडल बनवाते हैं और फिर हम उसमें क्या करते हैं, वी वी आर डूइंग सम कोडिंग और फिर हम उसमें चिप फिट करते हैं और फिर हम बाहर से इंस्ट्रक्शंस देते हैं थ्रू आर लैपटॉप एंड ऑल, थ्रू विच आर रोबोटिक्स आर गेटिंग, थ्रू विच हमारे रोबोट को पता चलता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फंक्शन इट हैज़ टू डू. It involves creating and controlling robot that can sense their surroundings, make decisions and perform tasks autonomously. Now robots are designed and programmed to perform human activity. Robots क्या क्या कर सकते हैं, human activities कर सकते हैं. Components of AI robot. Now robots are AI robots. AI robots means हम जब बैक टू बैक इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे रोबोट को तो ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनता जा रहा है. सो इट इज़ बिकमिंग AI robot. So what are the things we need? First thing is power supply, second thing is actuator, third thing is electric motor, fourth thing is pneumatic air muscles, fifth is muscle wires, sixth is motors, and seventh are sensors. तो ये सारे devices है जिससे मिलकर एक robot बनता है. Now it is an example of robot. You can see this is a mobile robot. This one दिस वन इज़ अ मोबाइल रोबोट. मैंने बच्चों को जब पढ़ाया था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रोबोट तो उसमें था सिंपल रोबोट, कॉम्प्लेक्स रोबोट, मोबाइल रोबोट मीन्स द रोबोट्स विच कैन मूव. तो यहाँ पे 4 सेंसर्स है. दिस इज़ द 4 सेंसर्स. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मूवेबल रोबोट्स होते हैं जो कंपोनेंट्स को एक जगह से उठा कर दूसरी जगह पे रखते हैं. विजन सिस्टम मतलब ये दे कैन सेंस ऑल्सो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी है. रोबोट मैनिपुलेटर, this is manipulator, this is personal computer, and this is robot controller, and this is teach pendant. Robot controller is some person from PC is giving instruction to a robot controller. Robot controller से instruction किस में जा रहा है, मोबाइल रोबोट में. Now robotics की component क्या क्या है, अभी मैंने जो बताया पावर कन्वर्सन यूनिट है, सेंसर्स है, कंट्रोलर्स है, एक्चुएटर्स हैं, यूज़र इंटरफेस. नाउ दिस इज़ अ काइंड ऑफ रोबोट जिसमें ये क्या करता है, वॉइस सिंथेसिस. मैंने आपको NLP के बारे में बताया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि कैसे व्हेन वी गिव सम वॉइस कमांड टू अ रोबोट, और जैसे हम गूगल वॉइस या गूगल चैट करते हैं तो व्हेन एवर वी आर गिविंग अ वॉइस कमांड टू अ means our WhatsApp or any machines, then जैसे Alexa and Siri are there जिन्हें हम वॉइस मैसेजेस देते हैं, एंड वी आर गेटिंग द वॉइस रिस्पॉन्सेज ऑल्सो. वॉइस सिंथेसिस मतलब कैसे ये हमारे नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेसिंग करके हमारे लैंग्वेज को, डायलेक्ट को कन्वर्ट करता है दूसरे लैंग्वेज में, एंड फिर वो कन्वर्सन करके हमारे डेटा को वो प्रोसेस करता है. इमोशंस. ना एम्बेडेड CPU विथ वाईफाई. एम्बेडेड मीन्स हम इसके अंदर, इस मशीन के अंदर हमने CPU इनबिल्ट कर रखा है. लिपो बैटरी इज देयर. 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज देयर मीन्स ये मूव कर सकता है, इसका जो नी है वो मूव कर सकता है. वॉइस रिकॉग्नाइजेशन मीन्स जब व्हेन इट विल बी न्यू, व्हेन जब हमने इसे फ्रेश असेंबल किया तो
इट विल टेक इंस्ट्रक्शंस, फिर धीरे धीरे ये क्या करता है, वॉइस को रिकॉग्नाइज करना करता जाता है। नेक्स्ट वन इज टू कैमरास, स्विचेबल हेड, देन प्रीहेंसिव हैंड्स, देन लिनक्स ओएस एंड 23 डिग्री। नाउ दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अगेन अनदर एग्जांपल। यहाँ पे एक्सिस है, रोटेट एक्सिस, मूव एक्सिस अपवर्ड and डाउनवर्ड, मूव द रोबोट बॉडी बैकवर्ड एंड अपवर्ड एंड rotate the wrist. This is the waves robot wrist upwards or downwards. Teaches manipulator movement programming pendant. This is the programming pendant through which we are giving instruction. This is the controller. Control the complex motion of a manipulator in a comprehensive manner. पाइथन, अब रोबोट्स में को हम इंस्ट्रक्शन कौन कौन से लैंग्वेज में देते हैं, वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ रोबोट इन पाइथन, जिसमें वी कैन गिव इन सी प्लस प्लस ऑल्सो यूज इन real time robotic system. We can give Arduino, which is a C based, great for hardware control, and we can give ROS, which is robot operating system used in advanced robot. Now you can see this is an Arduino great for hardware control. We can give instruction, इसको बस हमें we can give instruction through Arduino. हम Arduino से अपने डिवाइस को कनेक्ट करके हम इससे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमारा डिवाइस ऑपरेट करता है। तो दिस इज अ हार्डवेयर कंट्रोलर। Now this is the internal circuitry of a Arduino. RFID module, Bluetooth module means here we can connect the Bluetooth HM10, and then you can see three-phase fuse. Fuse is also there. Then we have two three-phase contactor is there. Then Arduino की सर्किटरी है, जैसे हम जब माइक्रो प्रोसेसर हमने पढ़ा था तो हमने माइक्रो प्रोसेसर में भी हमने पढ़ा था उसका इंटरनल सर्किटरीज, वैसे Arduino की सर्किटरीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ इट इज़ वर्किंग। Now this is reset button. It has a reset button also. It has this reset button. It has a USB port to upload program. मतलब यहाँ पे आप अपना पेन ड्राइव या जो भी डिवाइस है उससे आप अपना प्रोग्रामिंग को इनपुट करोगे। पावर जैक टू गिव पावर टू Arduino, ये वाला स्लॉट में आप पावर को कनेक्ट करोगे, यहाँ पे VGA केबल आएगा या जो भी पावर केबल है वो। पावर सप्लाई फॉर इनपुट एंड आउटपुट कंपोनेंट, यहाँ पे आप इनपुट आउटपुट के लिए जैसे आप माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हो, एनालॉग पिन टू कनेक्ट इनपुट सेंसर्स, यहाँ पे आप इनपुट सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हो, और माइक्रो कंट्रोलर एट मेगा। फिर डिजिटल पिंस टू कनेक्ट LED LCD रिले, फिर यहाँ पे आप LED LCD कनेक्ट करके उसको प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्टर के थ्रू आप दिखा भी सकते हो कि आपने क्या किया है। टिपिकल Arduino बोर्ड, या Arduino बोर्ड का सर्किट डायग्राम है, जहाँ पे यू कैन सी वो जो मैंने अभी बताया कि कहाँ आप पावर कनेक्ट करोगे, फिर आप पैकेट स्विचिंग करोगे, ये सब ये। नाउ हाउ टू कनेक्ट एन Arduino विथ अ रोबोटिक हैंड। सपोज आपने एक रोबोटिक हैंड बनाया, तो आइडेंटिफाई योर रोबोटिक हैंड टाइप। पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका रोबोटिक हैंड आपने किस लिए बनाया और वो कितना कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकता है, वेदर इट कैन डू अ सिंपल टास्क और कॉम्प्लेक्स टास्क। Robotic hand typically fall into two categories: servo-based, uses servo motor to control each finger, or myoelectric, uses sensors to detect muscle signal. सेंसर से ये रोबोट का मसल सिग्नल को डिटेक्ट करता है कि नाउ रोबोट इज गोइंग टू डू दैट। और हमने ये भी देखा है कि रोबोट्स की बैटरी भी कभी कभी डाउन हो जाती है, तो हमें ये सेंसर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि इसकी बैटरी डाउन होगी। नाउ सेकेंड थिंग वी विल डू इज गैदर रिक्वायर्ड कॉम्पोनेंट। हमें क्या क्या डिवाइस चाहिए, हमें चाहिए Arduino बोर्ड, जो मैंने अभी दिखाया, यूनो, मेगा और नैनो। यूनो में ये डिवाइस की कैपेसिटी है कि आप मेगा बहुत बड़ा Arduino चाहते हो, या नैनो छोटा चाहते हो, या यूनो मीडियम साइज। सर्वो मोटर कौन सा चाहते हो, SG90 या MG995 फॉर स्ट्रॉन्गर ग्रिप, या पावर सप्लाई के लिए आप एक्सटर्नल बैटरी पैक यूज़ करना चाहते हो, या जंपर वायर भी हमें चाहिए। देन पोटेंशियोमीटर्स और सेंसर्स ऑप्शनल फॉर मैनुअल कंट्रोल। फिर ग्लोव विथ फ्लैग सेंसर्स इफ कंट्रोलिंग वाया हैंड मूवमेंट, अगर आप हैंड मूवमेंट देना चाहते हो तो आपको सेंसिंग ग्लव्स यूज़ करने पड़ेंगे। नाउ वायरिंग द सर्वो मोटर्स टू Arduino, वायरिंग कैसे करेंगे। ईच सर्वो मोटर हैज 3 वायर, हर सर्वो मोटर का 3 वायर होता है, रेड, ब्लैक और येलो। रेड जो है VCC पावर है, कनेक्ट टू 5V फॉर स्मॉल सर्वो और एक्सटर्नल
6 वोल्टेज, ये वोल्टेज का पावर है सप्लाई फॉर लार्जर सर्वोस। और ब्लैक कलर का जो होगा वो GND या एड्रीनो को कनेक्ट होगा, और येलो या ऑरेंज कलर का होगा जो कनेक्ट होगा PWM पिन के लिए, एड्रीनो एग्जाम्पल D3 D5 D6 D9। फिर हम कोड लिखेंगे। हम कोड कैसे लिखेंगे? ये कोड है सी में, इन हैज इंक्लूड सर्वो डॉट इन। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हमें क्या क्या यूज़ करना है? सर्वो का थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, पिंकी, मतलब ये फिंगर्स हैं, हम फिंगर्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वॉइड सेटअप, हम सेटअप करना चाहते हैं क्या? थंब अटैच 3, कनेक्ट सर्वो टू PWM पिन 3, इंडेक्स अटैच 5, मिडिल अटैच 6, रिंग अटैच 9, पिंकी अटैच 10। हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारा कौन कौन सा फिंगर में क्या क्या इंस्ट्रक्शन होगा। वॉइड लूप, अभी लूप चलेगा। ओपन हैंड लूप मीन्स अ प्रोसेस विच हैज़ अ स्टार्ट पॉइंट एंड इट हैज़ अ एंड पॉइंट। वो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट में बार बार मूव करेगा। थंब डॉट राइट, इंडेक्स डॉट राइट, मिडिल डॉट राइट, रिंग डॉट राइट, पिंकी डॉट राइट, डिले 1000 के डिले में हर फिंगर से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन जाएगा। क्लोज हैंड, थंब डॉट राइट 90, इंडेक्स राइट 90, मिडिल राइट 90। अभी 90 डिग्री ये क्या है? ये क्लोज हैंड है, मतलब हम हैंड को क्लोज करना चाहते हैं तो हमें एक एक फिंगर को क्लोज करना होगा, तब हमारा हैंड क्लोज होगा। Adding sensors for control, use flex sensor in a glove for natural hand movement। हम natural hand movement के लिए flex sensors का यूज़ करेंगे। अल्ट्रासोनिक और IR sensors का यूज़ करेंगे to detect object and auto grip। हमारे रोबोट को हम ग्रिप देना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया, we will throw a ball and if it will be able to grip it or hold it tightly, then means we are using an ultrasonic IR sensor। फिर हम एक ब्लूटूथ या वाईफाई मॉड्यूल यूज़ करेंगे जिसमें टू कंट्रोल वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर में क्या क्या यूज़ करेंगे? लर्न बेसिक सर्किट्स, जैसे हमें रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स के बारे में पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड माइक्रो कंट्रोलर्स जैसे एंड्रीनो और ESP32। लर्न अबाउट मोटर्स एंड सेंसर्स, हाउ दे वर्क। प्रैक्टिस सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स। अब ये बिगिनर्स प्रोजेक्ट है, हम कुछ कुछ बना सकते हैं, जैसे LED ब्लिंकिंग विद एड्रेनो, लाइन फॉलोइंग रोबोट, मतलब एक रोबोट है जो किसी लाइन को फॉलो करके जा रहा है। ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट, एक रोबोट है जिसके बीच उसके आपने मूवमेंट दिया कि यू हैव टू मूव, और वेन एवर इट इज गेटिंग एन ऑब्स्टेकल देन इट इज जंपिंग और avoiding that obstacle and moving forward। रिमोट कंट्रोल कार, हम जो रिमोट कंट्रोल कार यूज़ करते हैं, whenever we are giving instruction from the remote our car is moving, that is also a beginners robotic projects। और लर्न AI एंड कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन जब हम डेटा विजुअलाइज करते हैं थ्रू इमेज एंड वीडियोज, एंड इट इज कंप्यूटर विजन। लर्न मशीन लर्निंग फॉर रोबोट्स, यूज OpenCV फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अंडरस्टैंड SLAM, व्हाट इज SLAM? सिमुलेशन, localization and mapping। Explore real-world application, industrial robot used in manufacturing, autonomous vehicles, self-driving car, home automation, smart home robot, and space robotics, that is Mars rovers। मार्स ने ऑपरेशन मार्स में जो स्पेस में रोबोट्स को छोड़ा गया था, दैट वाज मार्स रोवर्स, जिसने मार्स की इंफॉर्मेशन को गैदर किया था। अब पार्ट्स ऑफ रोबोटिक्स किट। रोबोटिक्स किट अगर आप इफ़ यू आर बाइंग अ रोबोटिक्स किट तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है एक माइक्रो कंट्रोलर एंड प्रोसेसर्स, जिसमें एड्रीनो होते हैं। एड्रीनो क्या है? बिगिनर फ्रेंडली, जो अभी मैंने अभी बताया कि एड्रीनो किड्स आर यूजिंग एड्रीनो फॉर देयर स्कूल एंड कॉलेज प्रोजेक्ट्स। ओपन सोर्स होता है, सी प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज रास्पबेरी पाई, विच इज़ मोर एडवांस। ये सपोर्ट करता है पाइथन को और ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को। ESP32, ये एक IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड वायरलेस कंट्रोल। Now, what are the sensors for detecting the environment? We have ultrasonic sensors, which is SRO4 for obstacle detection. We have infrared sensors for line following robot. We have LDR sensors for light based robots. We have temperature and humidity sensors, which is DST11 and DST22. We have accelerometer and gyroscope, which is for motor detection. We have lidar sensor for mapping and navigation, जो हम GPS में use करते हैं। We have motors and actuators for movement। We know that we are creating a robot for movement। हम robots बनाते ही इसलिए हैं कि हम उसे movement देना चाहते हैं।
So we should use a DC motor for general movement, servo motor for precise angular movement, robotic arms. We have stepper motors for accurate stepwise movement. We have solenoid and actuators for pushing and pulling actions. Now power supply component, we have batteries, Leon Vico AA battery packs. We have power bank for Raspberry Pi. Base robots, we have voltage regulator to ensure stable power. Connectivity modules for wireless control. We have a Bluetooth module HC05, HC06 wireless control from mobile, Wi-Fi module, IoT based robots, RF module, radio frequency communication, GB, XB for industrial robotic communication. Now this was robotics and this I have tried to give कि these things you need to learn और उसके बाद क्या होता है you need to do practice. You need to buy a robotics kit and you need to do practice of how you are doing the thing. Thank you very much. Have a nice day.